Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at City Capital. This is going to be your one and only one-stop solution video if you are watching this video in November. So I'm assuming with all the exceptions, आपके पास roughly solid 4 महीने हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. मार्च के टाइम में प्रिपरेशन को काउंट नहीं करना है. एवरीथिंग यू विल डू इन द मार्च और आफ्टर द फरवरी टिल द एग्जाम दैट विल बी द बोनस थिंग. So we are not going to be talking about that thing. I'm going to tell you the 4-month plan to ace your CUET psychology preparation. Before the start of the video, there's a very announcement for you people. I'm Utkarsh Sharma, your psychology mentor, and I have batches curated if you are preparing for the CUET exam or you are preparing for the GATE exam or for the matter if you are preparing for any of the PG psychology entrance exams such as AU, NFSU, CPET, and Allahabad University, Christ University, all other entrance exams, you can join my courses. So there are two types of courses. The one is Mahayuddha batch and the other one is Sankalp batch. So Sankalp batch is a all new foundation coach which is starting from mid of November. So registrations has already begun. In the end of the video, I'll tell you किस तरह से आपको registration करना है and also there is a big surprise for you people. All right. So what are the features of the batch? You will be getting access of the live classes. So daily हमारी live classes होंगी जिसमें you can interact with me, you can ask doubts with me. If for some reason आपकी live class मिस हो जाती है, आपके पास recordings का भी option रहेगा, आप class recordings भी देख सकते हो. इसके अलावा you will be having access to PPTs, PDFs, short notes जो आपको revision में बहुत ज़्यादा help करेंगे. You will be having personal interaction with me. मेरा personal number आपके पास होगा. You will be added in the WhatsApp group जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली मेरी चैट पे पर्सनली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो देयर इज नथिंग लाइक बोरिंग नॉनसेंस प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप अ गूगल फॉर्म किसी मीडिएटर के थ्रू मॉडरेटर के थ्रू आप जाओ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो. यू विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी till the exam and after the exam. You can ask any kind of doubt related to psychology, related to your preparation with me directly. Other than this, you will be given access to the mock test series, which is the All India Comprehensive Mock Test Series for the solutions and answer keys, जो कि एग्जाम के टाइम पे हम करंट कराते हैं. ये सब कुछ आपको दिया जाएगा along with lot of mentorship benefits and Vipul sir special session guidance. ये सब कुछ आपको दिया जाएगा both in Sankalp batch and in the Mahayuddha batch. So what is the difference? Sankalp batch is a one time foundation batch जो कि 2.5 से 3 महीने का बैच होगा. यहाँ पे we will be having live classes, सब कुछ होगा, special MCQ sessions होंगे जहाँ पे I'll teach you MCQ solve कैसे कराते हैं, all these things, right? But this is the single foundation batch. But what is the special in Mahayuddha batch? This is the one-time solution batch. If you'll buy the Mahayuddha batch, आपको उसमें संकल्प batch के सारे features दिए जाएंगे. So in Mahayuddha batch, the Sankalp batch is included. But what else you will get? You will get benefit without any extra cost, without any single rupee, the benefits of my 30-day special MCQ booster batch series. So ये स्पेशल एक बैच होता है जिसको मैं फेब और मार्च में लॉन्च करता हूँ. दिस इज अ स्पेशल 30-day बैच, राइट? 30 क्लास बैच होता है ये जिसमें आई सॉल्व लाइव 3000 क्वेश्चंस. ये पूरा आपके सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं. यू विल बी सॉल्विंग research and methodology questions around 7 to 800 probable MCQs. All right. हर एक टॉपिक पे we solve around 100 MCQs which are most probable questions. Like this is my flagship batch जो लास्ट में all in one एक आपकी पूरी प्रिपरेशन को समराइज कर सकता है. So if you're going with the Mahayuddha batch, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. But if you're going with the Sankalp batch, आपको फाउंडेशन बैच का एक्सेस दिया जाएगा एंड विजेता बैच विच इज द बूस्टर बैच MCQ बैच आपको अलग से खरीदना पड़ेगा. वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे इस पूरे बैच को खरीदना है एंड द स्पेशल सरप्राइज फॉर यू पीपल. शुरू करते हैं द 4-month strategy. As in Study Capital family, we believe in hand holding approach. So I have promised you कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा. I'll tell you A to Z everything. आपको क्या क्या करना है, राइट? In my coming videos, I'll also make a video का आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए. So if any case you are feeling very blind, very empty, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ. I know मुझे क्या करना है, I know मुझे क्या पढ़ना है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं अपना दिन प्लान कैसे करूँ. I'll make a video for your daily routine also. All right. So I can guarantee this thing, this type of content you will
never get in any other channel or from any other person, because मैंने अपनी personal time में मैंने अपने बोला था बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं मिला ऐसा content. Alright? So after this video, you will be very soon watching the video जहाँ पे मैं आपको daily routine बता दूंगा कि आपको किस तरह से अपने hours को divide करना है. I'll give you that also. So the first month, which is the November, आपको अपना foundation पूरा clear करना होगा. So this first month is of foundations. Alright? यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जितना भी बेसिक कोर्स है, दैट इज द फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी. इसमें आपको जो नेचर होता है, डेफिनेशंस, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जितने भी आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, एवरीवन यू हैव टू रिमेंबर द फाउंडर, राइट? एंड इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का फाउंडर कौन था और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या थे, ये आपको याद करने हैं. देन द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी सच एज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, इंटरव्यू, कोरिलेशंस. इसको आप चाहो तो अलग से आप रिसर्च के लिए होल्ड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो. देन यू हैव टू कवर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. अगेन मैंने आपको पूरा फाउंडेशन दे दिया है कि किस किस तरह से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है. अब कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ो. मैंने आपको ये तक बता दिया आपको क्या पढ़ना है. ऑलराइट? एक महीने में सब कुछ कवर होना चाहिए. नाउ इट्स अप टू यू. ठीक है, आप प्लान करो अपने हिसाब से. नहीं प्लान हो पा रहा है, मैं आपको वो भी स्ट्रैटेजी वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो डे बेसिस पे. ऑलराइट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. जस्ट रिमेंबर, ये सब कुछ आपका एक महीने में कंप्लीट होना चाहिए. एंड विद द टाइम आपका बर्डन बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. एंड ट्रस्ट मी, जिसे अभी ये ज्यादा लग रहा है छोड़ दो प्रिपरेशन. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको ये सब चीज ज्यादा लग रही हैं, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगी आगे चीजें. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट टफ. अगर आपको ये टफ लग रहा है तो इट मीन्स कि आपने बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस अपने अंदर और डाल रखा है. ठीक है, तो विंटर आर्क इज कमिंग. अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालो इस चीज से. गेट बैक ऑन द ट्रैक. दिस इज द राइट टाइम. ऑलराइट, बायोलॉजिकल बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन. नर्वस सिस्टम आपको पूरा खत्म करना है, इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल, देन पूरा उसका जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है. एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या उसका इंपैक्ट होता है, सब कुछ पढ़ना है. ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप, हाउ डज ब्रेन अफेक्ट द बिहेवियर, क्या क्या ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें इंपैक्ट आता है, सब कुछ ये पढ़ना है आपको. देन फिजियोलॉजिकल बेसिस में आपको इमोशंस, मोटिवेशन की थ्योरीज, किसने कौन सी थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी. देन सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, ये सारी चीजों में भी आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा. ऑलराइट, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा. प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसेशंस, गेस्टाल्ट के लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहो तो इनको स्ट्रक्चर्स में भी खत्म कर सकते हो, फाउंडेशन वाले में, या फिर यहाँ पे पढ़ लेना. इट्स अप टू यू. ठीक है, एग्जाम में आपके टॉपिक बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, एग्जाम में इट्स नॉट लाइक दैट कि सेंसेशन का क्वेश्चन है, ये कॉग्निटिव क्वेश्चन. नो, देयर विल बी वन एमसीक्यू जो आपको सॉल्व करना है, सिंपल. ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को कहीं भी पढ़ो, इट डजंट मैटर. पढ़ना है ये जरूरी है. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, अटेंशन, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, स्पैन क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है, सस्टेनेबल अटेंशन क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है आप. देन लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्किप मत करना एट एनी कॉस्ट. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपन कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेते हो तो आगे कभी यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो तो वहां पे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. देन मंथ 2. ठीक है, एक मंथ में आपको सारी चीजें कवर करनी है. कैसे करनी है वो आप डिसाइड करो. ठीक है, नहीं हो पाता है, आई विल गिव यू अ प्लान आल्सो, डोंट वरी. मंथ 2 में यू हैव टू स्टडी द कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस. अगेन अ बिग टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. क्या क्या पढ़ना है आपको? आपको मेमोरी एंड फॉरगेटिंग को पूरा खत्म कर देना है, विच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एसटीएम, एलटीएम, सेंसरी मेमोरी, कैसे रिट्रीवल होता है, क्या इनकोडिंग और स्टोरेज का प्रोसेस होता है, व्हाट आर द थ्योरीज फॉर दिस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग, इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है, देन इसमें एबिंगहॉस का क्या कंसेप्ट है, रिट्रीवल मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक कौन सी है, निमोनिक डिवाइसेस, ऑल दीज थिंग्स कंप्लीट. ठीक है, इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग से आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यूज द चैट जीपीटी और गूगल, वहां से आप सीधे पढ़ सकते हो क्या क्या पढ़ना है आपको. टाइप्स ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. सिंपल से बता दो चीजों को आसान करने के लिए, यू हैव टू स्टडी बेसिकली 3-4 थिंग्स जो कि एग्जाम के लिए जरूरी हैं. ठीक है, अगेन ये सारे चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसमें ये जरूरी नहीं कि सबसे क्वेश्चन आता रहे. उसके लिए सेपरेट वीडियो.
which I've told you the 10 most important chapters जहाँ पे आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं. These are the highest worth chapters. इनको आप पढ़ के जाते हो, आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलते हैं, राइट. बट दीज आर द ओवरऑल सिलेबस काइंड ऑफ पार्ट कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है. ठीक है. इसमें आपको सिंपली पढ़ना है प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग किसने दिया था, क्या एग्जांपल्स होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. देन आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. देन आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पढ़ना है, डिसजंक्टिव, इंजंक्टिव क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़नी है. सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट चीजों को सिंपल रखोगे तो लाइफ सिंपल रहेगी. देन आपको इंटेलिजेंस से एप्टीट्यूड खत्म करना है. यू हैव टू रीड ऑल द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है. जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं 10-12 थ्योरीज यू हैव टू स्टडी. बिनेट एंड विशलर की स्केल्स को पढ़ना है आपको. रेवन को पढ़ लेते हो, इट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. इफ यू रीड इट, इट्स अ गुड थिंग. रिसेंट ईयर्स में रेवन से उतने क्वेश्चन आए नहीं है बेसिकली. ठीक है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वेरी बिग टॉपिक, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, पियाजे एंड वाइगोस्की की थ्योरी. साइको सोशल थ्योरी आपको पढ़नी है बाय एरिक्सन, एंड मॉरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग. देयर इज अ बोनस टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो, देयर इज अ थ्योरी ऑफ मार्शियास आइडेंटिटी डेवलपमेंट. ठीक है. मार्शिया का आइडेंटिटी डेवलपमेंट अगर आप इसको पढ़ लेते हो, इट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देते हो. मैं जल्दी इसको पढ़ा देता हूँ बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि रिसेंट ईयर्स में से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन द फ्यूचर. तो मैं अपने बच्चों को ये चीज पढ़ा देता हूँ. देन द मंथ 3 यू मस्ट बी रियलाइजिंग दिस थिंग कि बर्डन बढ़ रहा है धीरे धीरे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप धीरे धीरे डेडिकेटेड हो रहे हो. एंड अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स समवॉट यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, अदरवाइज आप पहले ही स्किप कर करके उसको बंद कर चुके होते. ऑलराइट. So again, I only make videos for the serious audience. Alright. मंथ 3 आपको अपना पर्सनालिटी, सोशल साइकोलॉजी और क्लिनिकल डायमेंशंस और आरएम खत्म करना है. तो ये आपका सबसे हेक्टिक पार्ट होने वाला है. तो जो आपका थर्ड मंथ होगा, विच इज जनवरी. जनवरी विल बी योर टफेस्ट मंथ फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है. क्यों मैंने जनवरी चूज किया, बिकॉज फेब और मार्च में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल्स और ये सब का टेंशन रहेगा. जनवरी आई नो बहुत प्रेशर रहेगा आपको, बट प्लीज बच्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा. You have to complete very big topics such as personality. पूरी personality की थ्योरीज आपको कवर करनी है. फ्रॉइड, यंग, एडलर, रॉजर्स, एल्पर्ट, केटल, आइसेंक्स, ओशन, सब कुछ. टाइप्स ऑफ टेस्ट आपको कवर करने हैं. ठीक है. मोटिवेशन एंड इमोशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट वहां पे आपने फिजियोलॉजिकल बेसिस पढ़ रखा था. अगर उसी मोमेंट पे आप थ्योरीज भी कवर कर ले रहे हो, देन यू आर गुड टू गो. यहाँ पे आपको थोड़ा सा चैप्टर कम हो जाता है. लेकिन अगर वहां पे आपने केवल फिजियोलॉजिकल बेसिस पढ़ा हुआ है, विच मीन्स हाउ ब्रेन अफेक्ट्स इमोशन एंड मोटिवेशन, कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको इमोशन और मोटिवेशन की ऑल द वे थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी जितनी भी हैं. इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, आई नो सोशल साइकोलॉजी सीवीटी का पार्ट नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट एंड एफएसयू एंड सीपेट. ठीक है. जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी. प्लीज इसको स्किप मत करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एज फार एज आई कैन प्रिडिक्ट, आने वाले कुछ ईयर्स में आप देखोगे कि सोशल साइकोलॉजी भी इंक्लूड वापस से कर लिया गया है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड दिस टॉपिक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपको पूरा DSM-5 पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSM-5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSM-4. ठीक है. DSM-4 2013 में डिस्कार्ड हो गया, बट अभी भी उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो डू नॉट स्किप दैट थिंग. ठीक है. DSM-5 और DSM-4 में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको पढ़ने हैं. You have to read about all the disorders. You don't have to read the like criteria. You only have to read the symptoms. So you don't have to read the criteria. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना. हर एक डिसऑर्डर के क्या क्या कॉजेज होते हैं, व्हाट आर थेरेपीज सच एज साइकोएनालिसिस, बिहेवियर थेरेपी, CBT, ह्यूमनिस्टिक में आपकी क्लाइंट थेरेपी, देन आपकी बिहेवियर थेरेपी में जैसे आपका एवर्जन थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, राइट, फ्लडिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है. Then with the RM and statistics, you have to study the variables. ठीक है. हाइपोथेसिस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर सैम्पलिंग मेथड्स, व्हाट आर देयर टाइप्स. इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पढ़ने हैं आपको, सच एज AB डिजाइन, ABA डिजाइंस, ये सारी चीजें पढ़नी है. डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, what are the tools, what are the examples of these things, what are the types of correlation, कौन सा correlation हम कब use करते हैं. Same goes with t-test, same goes with ANOVA. What is ANOVA, what is one factor ANOVA, what is two factor ANOVA, what is multi-factor ANOVA. ठीक है, जिसको हम factorial ANOVA कहते हैं. Then what is reliability, validity and norms.
ठीक है, एक और चीज ऐड कर लो, नॉर्म्स। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल, यू आर डन विद योर सिलेबस। नाउ इट्स टाइम फॉर द बैटल, एमसीक्यू प्रैक्टिस। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नवंबर में शुरू कर रहे हैं। इफ यू आर ज्वाइनिंग माई बैचेस और एनी ऑफ द बैचेस, इट्स फाइन। फिर वो आपका टेंशन नहीं है, फिर वो हमारा टेंशन है कि हमें कैसे किस तरह से चीजें कंप्लीट करानी है। इट्स लाइक दैट्स लाइक अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग अप्रोच। विल टेल यू एवरीथिंग एंड विल टेल यू एवरी टाइम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद द सेल्फ, ये आपके लिए एक गाइडेंस वीडियो है, ठीक है। फोर्थ मंथ विच इज द फेब्रुवरी, यहाँ पे आपको रिवीजन स्टार्ट करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले रिवीजन एमसीक्यू को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इतने बड़े भक्त नहीं बनना है आपको। यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ दैट आई एम गिविंग यू पाथवे। अब इस पाथवे में आपको किस तरह से चलना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो फोर्थ मंथ विल बी योर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड रिवीजन। कैसे कर सकते हो आप, इफ यू आर इन अवर बैचेस, तो आपको फोर्थ मंथ की वेट करने की जरूरत ही नहीं है। एवरी टाइम वी कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, हम उसका वीकली टेस्ट लेते हैं एमसीक्यूज के बेसिस पे, ऑलराइट। इसके अलावा विल गिव यू ऑलमोस्ट 15 प्लस मॉक टेस्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, सब कुछ कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके जो बीवाईक्यूज होंगे, सीयूईटी के, डीयूईटी, जामिया, बीएचयू, एएमयू, सब कुछ बीवाईक्यूज इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑलराइट। वरना स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पीवाईक्यूज मैंने ओपन कर रखे हैं, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आप चैट जीपीटी से बोल के बनवा सकते हो। अदरवाइज देयर आर सो मेनी बुक्स जो सस्ती आती हैं, 400-500 रुपए की आती हैं, आप खरीद कर सकते हो। फुल लेंथ अगर आप हमारे बैचेस में जुड़े हो तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अदरवाइज कहीं से अगर आप लोग पीवाईक्यूज या सैम्पल पेपर्स कहीं से आप जुगाड़ कर पाते हो, इट्स फाइन। अपनी गलतियों का एक हिसाब रखो, ठीक है। सो मेक एन एरर लॉग बुक। यू विल सी इन माय इंटरव्यू वीडियोस विद द स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव टोल्ड मी दिस थिंग कि सर जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते थे तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते थे, नोट डाउन करते थे कि हमने क्यों गलत किया है क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच वी मिसअंडरस्टूड, कहां से हमसे गलती हो रही है, सो दैट मिस्टेक कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और किस तरह से आप रिवीजन करोगे ये भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग को माइंड मैप्स यूज करना है, ठीक है। You have to use flashcards and short notes. And don't worry, we are planning, we are working with our team. We will give you these mind maps, flashcards and short notes. ठीक है, हम आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे अपने बैचेस में। ये हमारी प्लानिंग है। So again, I'm not committing anything. We are working on this. Our team is working on this. If this gets successful, we will give you this also. Otherwise, हम आप लोग को तरीका बता देते हैं कि कैसे बनाना होगा सारी चीजें, ठीक है। तो again, we don't like announce anything before we are actually sure about this thing, ठीक है। So for this thing we are sure, we have planned something, but till now we haven't executed this thing. So again I'm not committing anything, ठीक है। अगर हमने आपको ये सारी चीजें नहीं दी, बिकॉज हमने कभी नहीं दिया है सब, हम ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने बैचेस में, ऑलराइट। इफ नॉट देन आई विल प्रोवाइड यू सम ऑप्शंस कि आप कहाँ से इन चीजों को कर सकते हो, बिकॉज इन इंटरनेट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑलराइट। हैव टू रिवाइज द की थ्योरीज, ईयर्स उनके क्या क्या जरूरी हैं, ठीक है। 3 ही 4 ईयर्स होते हैं आपको जरूरी है, बट वो आपको पता होने चाहिए। जितने भी मेजर क्लासिफिकेशन है सिस्टम्स के, आईसीडी, डीएसएम, सब आपको पढ़ना चाहिए। कैसे आप किन टॉपिक्स में फोकस करोगे, इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग, पर्सनालिटी, डेवलपमेंटल, एबनॉर्मल, रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। दीज आर वेरी हाई पेइंग टॉपिक्स। मतलब देर इज शॉर्ट चांसेस कि इनसे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं हर टॉपिक से। इंटेलिजेंस से देर विल बी 2-3 क्वेश्चंस, लर्निंग मेमोरी से देर विल बी 4-5-6 क्वेश्चंस, पर्सनालिटी से देर विल बी 2-3 क्वेश्चंस, डेवलपमेंटल से देर विल बी 5-4 क्वेश्चंस, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से देर विल बी 7-6 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज्यादा हाई पेइंग टॉपिक्स होते हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इन द लास्ट द अनाउंसमेंट व्हिच आई हैव मेड यू, you can download the Study Capital app. There you will see this section and you will see this Mahayodha badge. Alright, आप इस महायोद्धा बैच को देखोगे, you can click on this, you can search the psychology badge, you will get the badge. Otherwise आप नीचे scroll करोगे, alright, and you will see this Sankalp badge. So this is a Sankalp badge, this is a normal foundation badge, ठीक है, and this is a Mahayodha badge. So alright, you can download the Study Capital app and there is this announcement which I told you, and the announcement is you have to apply a coupon code of Utkarsh 20. Let me write it here. The coupon code is Utkarsh 20.
and you will get a 20% straightforward discount on all of our batches. Okay? So suppose there is no as such offer going on, right? You can apply this coupon code UTKARSH20, Utkarsh 20, and you will get a 20% discount straight upfront. Alright, see you soon in the batches. All the best for preparation, and again, see you soon in the next video.